can achieve the impossible things in our life. हम लोग हमारे जीवन में कैसे असंभव बातों को चीजों को पा सकते हैं. Bible says, वचन कहता है faith is a substance of things hoped for विश्वास वो सारी चीजों का न्याय है, and the evidence of things have not seen it. विश्वास वो सारी चीजों का प्रतीत है जो दिख नहीं सकती, जो अनदेखी है. Hallelujah. हालेलुया. I'm going to turn your attention to Mark chapter 2. मैं आप सभी का ध्यान मरकुस उसका दूसरा अध्याय, Mark chapter 2. मरकुस उसका दूसरा अध्याय. One day Jesus went to Capernaum. एक दिन यीशु मसीह कफरनहूम में गए. He went to a house. वो एक घर में गए Then he began to minister there. और वो वहां पर सभा समाचार चालू करने लगे. A lot of people came. बहुत सारे लोग वहां पर आए There was no space in that place. और उस जगह पर कोई बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, इतने लोग वहां पर Jesus आए. was talking to the people and disciples and all the people who were gathered there. पर प्रभु यीशु मसीह उन सारे लोगों से बातें कर रहे थे, अपने चेलों से बातें कर रहे थे जो उस जगह पर मौजूद थे. But outside of the house, something was happened. लेकिन उस घर के बाहर कोई तो कुछ तो हो रहा था. There was a man, he was paralytic for many years. एक घर के बाहर एक पुरुष था जो अपाहिज था बहुत सालों से. He couldn't come inside of the house. वो घर के अंदर आ नहीं पा रहा था. But 4 people taken a decision, we are going to lift this man and take into Jesus' place. और 4 लोगों ने वहां पर निर्णय लिया कि हम उस अपाहिज व्यक्ति को उठाकर ये जहां पर यीशु मसीह है उस घर के अंदर लेके जाएंगे. Hallelujah. हालेलुया. See, this man never had the faith, ये व्यक्ति को कभी विश्वास नहीं था, but these 4 of his friends, they had the faith. लेकिन उसके जो 4 मित्र थे उनको ये विश्वास था. They have taken a decision. See, this man cannot go to Jesus because he's paralytic. He cannot move. He lost his ability to walk and his hands is not able to move. So what we are going to do? We are going to lift this man from the bed, along with the bed, and we are going to take into that place. वो 4 लोग जानते थे कि ये व्यक्ति खुद से चल नहीं सकता, खुद से हाथ हिला नहीं सकता, खुद से उस घर में जा नहीं सकता क्योंकि वो अपाहिज है. तो इन्होंने निर्णय लिया कि जिस बिस्तर पे ये है उस बिस्तर समेत हम इसे लेके जाएंगे यीशु मसीह के पास. But when they reached in that house, they couldn't get inside of the house because of the crowd. जब वो घर के पास ही पहुंचे तब वो घर के अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी. They asked the permission to the owner, can we remove the roof to bring this man to bring it inside? तो उन्होंने उस घर के मालिक से पूछा क्या हम इस घर का छत तोड़ सकते हैं ताकि हम इस व्यक्ति को नीचे यीशु मसीह के पास ले जाए. But Bible says that they opened the roof and they dropped that paralytic man along with the bed where Jesus was staying. और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उन्होंने घर के उस छत को तोड़ा और उस अपाहिज व्यक्ति को बिस्तर समेत यीशु मसीह के जहां वो बैठे थे वहां उसको नीचे ले आए. वो See here, when we study this passage, we have to see that Bible says that when Jesus saw their faith, Jesus asked him, son, your sins are forgiven you. जब यीशु मसीह ने उन 4 मित्र के विश्वास को देखा तो वहाँ यीशु ने कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए. Hallelujah. हालेलुया. It's not paralytic man's faith. ये उस अपाहिज व्यक्ति का विश्वास नहीं था. The faith who brought that paralytic man. The people who brought that paralytic man. ये उनका विश्वास था जो उस अपाहिज व्यक्ति को उस घर में ले आए. That means उसका अर्थ ये है कि you can help someone else. आप किसी दूसरे की सहायता कर सकते हो.
Maybe your husband or wife or a family member going through a problem. It could be addiction, it could be any challenge, health issues. But if you are ready to believe for them, you can see the miracle will happen to the individual. अगर आपके परिवार में, आपके पत्नी में, आपके पति में कोई समस्या है और आपको ये विश्वास है और आप विश्वास के साथ उन्हें लेके चलते हो, तब आप उनके जीवन में जरूर चमत्कार को देखोगे। Hallelujah. हालेलुया। You can believe for someone else. आप किसी और के लिए विश्वास कर सकते हो। See, these four men, they took that paralytic man, they came with their faith, they believed that whenever we drop this man in front of Jesus, Jesus will heal this man. जब वो चार व्यक्ति अपने विश्वास को लेके उस अपाहिज व्यक्ति को लेके आए और उन्होंने छत तोड़कर उसे नीचे डाला और उन्हें विश्वास था कि यीशु मसीह के पास जाते ही ये चंगा हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Bible says that Jesus saw their faith. ये वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा। Hallelujah. हालेलुया। That means you can believe for someone else's breakthrough. इसका अर्थ ये है कि आप किसी और के छुटकारे के प्रति विश्वास रख सकते हो। Jesus said, "Son, your sins are forgiven you." यीशु मसीह ने कहा कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। Immediately the man got healed. और उसी समय वो इंसान चंगा हो गया। Quickly, I want to turn your focus into the 2 Kings. मैं आप लोगों का ध्यान दूसरा राजा 2 Kings chapter 5. दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय। Naaman was a leper. Naaman was a leper. नोमान एक Leper. लेपर था। नामान एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति था। He was an army commander. वो एक सेना का प्रतिनिधि था। Through Naaman, the Syria received many victory. और नामान के द्वारा सीरिया इस देश ने बहुत सारी लड़ाई को जीता। He was a well-reputed man. वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति He था। was a well-honorable man in his society. वो उसके गोत्र में बहुत ज्यादा आदर देने वाला व्यक्ति था। But he was a leper. परंतु वो एक कोढ़ी था। He was suffering with leprosy. वो कोढ़ से संघर्ष कर रहा था। But one day, परंतु एक दिन one miracle happened. एक चमत्कार उसके जीवन में हुआ। When the Syrians went for the raid, they brought a slave girl from the land of Israel. जब सीरिया में वो थे तब उन्होंने एक दासी को इज़राइल में ले आए। That little girl, that slave girl, was serving Naaman's wife. और वो उस दासी को जिसे वो उठा के लेके आए, वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। But this little servant girl, her attention went all over, her eyes went all over that place. लेकिन वो जो दासी, वो जो छोटी लड़की थी, उसकी आंखें सारी ओर देखती थी। She found out that this person, this army commander, is suffering and struggling with this sickness. और उसने ये देखा कि नामान जो सारे सेना का प्रतिनिधि है, वो कोढ़ से संघर्ष कर रहा है। One day, एक दिन this little girl went to her master's wife, और फिर एक दिन ये छोटी लड़की उसके स्वामी के पत्नी के पास गई and told her like this. और उसने उससे इस प्रकार कहा, There is a prophet in the land of Israel. He can heal your husband. उसने उससे कहा कि इज़राइल की भूमि पर एक भविष्यद्वक्ता है जो तेरे पति को चंगा कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। See, he never said that there is a Lord can heal your husband, but instead of that she said there is a prophet in the land of Israel. He is able to heal your husband. उसने ऐसा नहीं कहा कि एक परमेश्वर जो तेरे पति को चंगा कर सकता है, परंतु उसने इस प्रकार कहा कि इज़राइल की भूमि पर एक भविष्यद्वक्ता है जो तेरे पति को चंगा कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। See, this
girl, she never had the voice to pray. She never had the courage to pray for this commander. She never had any ability to tell about her God, but instead of that she said like this, see, there is a prophet in the land of Israel, he is able to heal your husband. उसके उस छोटी लड़की के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो नामान के लिए प्रार्थना कर सके, या फिर उसके पास उतनी काबिलियत नहीं थी कि वो अपने परमेश्वर के बारे में उसको बता सके। तो उसने इस प्रकार कहा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है जो तेरे पति को चंगा कर सकता है। See, this little girl became a channel for a blessing for Naaman's problem. और ये छोटी लड़की नामान के जीवन में एक आशीष का कारण ठहरी। You may not have the ability to share the gospel to others. आपके पास हो सकता है वो काबिलियत नहीं है कि आप परमेश्वर का समाचार दूसरों में प्रचार कर सको। You may not have the ability to pray for people. आपके पास उतना काबिलियत नहीं कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर You सको। may not have the education to share about Jesus. आपके पास उतना ज्ञान नहीं है कि आप यीशु के बारे में बांट सको। But you can do something. परंतु आप कुछ तो कर सकते हो। You can tell them, see, there is a person. You can introduce that individual to another person. परंतु आप एक चीज कर सकते हो, आप दूसरे व्यक्ति का परिचय उस व्यक्ति के साथ करवा सकते हो। You can tell them, see, there is a church here. They will pray for you. आप ऐसा कह सकते हो कि एक कलीसिया है जो आपके लिए प्रार्थना करेगी। See, there is a pastor here. He is able to visit your house and pray for you. आप कह सकते हो कि एक पासवान है जो आपके घर में आ सकता है और आपके लिए प्रार्थना भी कर सकता है। See, we have a group of brothers and sisters are here. They are going to stand with you. They are going to raise you. They are going to agree with you. They are going to help you. आप ऐसा कह सकते हो, हमारे पास बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे, जो आपको हौसला देंगे, जो आपकी मदद करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You can do something for Jesus. आप कुछ तो कर सकते हो यीशु मसीह के लिए। You don't need to go to Bible college or anything. आपको किसी बाइबल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। If you can go, that is a good thing. अगर आप जा सकते हो वहां पर तो वो एक अच्छी बात है। But at least you can do a text message. लेकिन वो करने से अच्छा आप किसी को एक टेक्स्ट या At मैसेज least भी you कर can सकते make हो। a phone call and tell them, see, there is a meeting is happening here. आप किसी को कॉल करके भी बोल सकते हो कि एक सभा यहाँ पर होने वाली है। You can tell them, you can invite your friends or neighbors. See, we have a Sunday service is going here. You can invite them. आप अपने बहन को, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को बुला सकते हो कि यहाँ पर रविवार की सभा होती है। If you do that, God will bless your hands. अगर आप वैसा करोगे तो परमेश्वर आपके हाथों को आशीषित करेगा। Hallelujah. हालेलुया। See, you can be a channel for the blessings for someone else's life. आप किसी और के जीवन में एक आशीष का कारण ठहर सकते हो। See, this little girl, she told to that master's wife. Then what happened? The news went to the palace. आप जानते हो ये छोटी लड़की ने अपनी स्वामी की पत्नी से कहा तो फिर ये खबर पूरे उस घर में फैल गई। The king heard about this news. और राजा ने इस बात को सुना। The king wrote a letter to the king of Israel. और फिर उस राजा ने एक पत्र लिखा इज़राइल के राजा को। Not only that, they brought plenty of presents to meet a man of God. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बहुत सारे तोहफे लाए ताकि वो परमेश्वर के जन से मिल सके। Bible says that they brought garments and presents to meet this man of God. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि उन्होंने बहुत सारे नए कपड़े लाए, बहुत सारे तोहफे लाए उस परमेश्वर के जन के लिए। They went to the land of Egypt, land of Israel. और वो इज़राइल की भूमि पर गए। They went to the palace and gave the letter to the king of Israel. और उन्होंने पत्र और तोहफे उस इज़राइल के राजा को दिए। Then the prophet heard about the Naaman came to land of Israel. और फिर उस भविष्यद्वक्ता को ये बात पता चली कि नामान इज़राइल की भूमि पर आया Then है। after that, Naaman directed to see prophet Elisha. और फिर नामान को दिखाया गया कि एलिया भविष्यद्वक्ता कहाँ पर है। He and his army and the whole people came. वो और उसकी सेना सारे लोग आए। He came with his officials. वो अपने सारे ऑफिसर्स को लेके Then आए he stood in front of the house. और वो घर के सामने खड़ा हो गया। Then he was waiting
for the man of God to come outside and say hi to him. और वो रुका हुआ था घर के बाहर कि परमेश्वर का जन आकर उसे हाथ दिखाकर उसे हाय कहे. But this man of God sent his servant and said, go to the river Jordan and dip 7 times and you will be healed. और परंतु परमेश्वर के जन ने अपने दास को बाहर भेजकर नामान के पास एक कहला भेजा कि उससे कहे कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा. But Bible says that Naaman got angry at the man of God. परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि नामान को परमेश्वर के जन का बहुत गुस्सा The आया. first question he asked, why this man of God didn't come and meet me because I am an army commander. उस नामान ने उससे कहा कि सबसे पहले तो तुम्हारा परमेश्वर का जन मुझसे मिलने क्यों नहीं आया क्योंकि मैं एक सेना का प्रतिनिधि हूँ. The second thing what he said, why he didn't call upon the name of his Lord. और फिर उसने ऐसा कहा कि क्यों उसने अपने परमेश्वर को पुकारा नहीं. The third thing again he asked, why didn't wave his hand over me and never heal me. और तीसरी बात उसने पूछी कि क्यों उसने अपने हाथ को मेरी ओर हिलाया नहीं. He got angry and he went back. और वो गुस्से में फिर चला गया But वापस. Bible says, परंतु परमेश्वर का वचन कहता the है officials told to Naaman, see, the prophet never asked you to do a hard thing. He asked you to do a simple thing. Just go to the river Jordan, dip 7 times and you'll be healed. जो लोग नामान के साथ आए थे, जब नामान वापस लौट रहा था गुस्से में, तब उन्होंने नामान से कहा कि उस परमेश्वर के जन ने तुझसे कोई बहुत ही कठिन काम करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ यरदन नदी में 7 बार डुबकी ही तो मारनी है. Naaman obeyed. नामान ने उनकी सुनी He went to the river Jordan, और वो यरदन नदी में गया dipped 7 times. और उसने 7 बार डुबकी लगाई. His skin became a skin like a baby skin. और उसकी चमड़ी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की नाई हो गई. Hallelujah. हालेलुया. That means उसका अर्थ ये है if कि you want to see a miracle, you need obedience. अगर आपको अपने जीवन में चमत्कार देखना है तो आपको आज्ञाकारी होना जरूरी है. If God asks you to do something, you have to do it. अगर परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो आपको उसे करना See, है. this man of God said, go to the river Jordan, dip 7 times, you will be healed. ये परमेश्वर के जन ने उससे कहा कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार और तू चंगा हो जाएगा. But this army commander's Naaman said, see, I have good rivers in my country. Why should I go to this river Jordan and I take shower there or dip 7 times? लेकिन नामान ने उस समय उससे कहा कि मेरे देश में इतनी सारी नदियां हैं, मैं इतना दूर यहाँ पर इस नदी में जाकर क्यों डुबकी लगाऊं? But Bible says, परंतु परमेश्वर का वचन कहता the है officials who were with him, they suggested to Naaman, see, he's a man of God. He never asked you to do a hard thing. He never asked you to roll on the floor or take a heavy lift or anything. He asked you to do a simple thing. Just obey it. परंतु अब नामान के साथ जो उसके लोग आए थे उन्होंने उसको समझाया और कहा कि देख, परमेश्वर के जन ने तुझसे कोई कठिन काम करने के लिए नहीं कहा, उसने तुझे जमीन पर रेंगने के लिए नहीं कहा, कुछ भारी सामान उठाने के लिए नहीं कहा, सिर्फ यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी ही तो मारनी है. See, I tell you, because of the official, Naaman received the healing. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नामान के साथ जो लोग थे उन्हीं की वजह से नामान को चंगाई मिली. Do you have any people like that in your life? क्या आप लोगों के जीवन में आपके पास ऐसे कुछ लोग हैं? Do you have any people who is ready to stand with you? क्या आपके जीवन में कोई ऐसे लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं? Do you have any people to celebrate with you? क्या आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ आनंद मनाने के लिए तैयार हैं? Do you have a group of people to stand with you and believe for your victory? क्या आप लोगों के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीत में खुशी मनाने के लिए और विश्वास करने के लिए तैयार हैं? If you don't have, pray to God. अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें. You need that kind of people. आपको आपके जीवन में ऐसे लोगों की आवश्यकता है. Hallelujah. हालेलुया. I'm quickly coming back to Mark chapter 5. हम मरकुस उसका 5वां अध्याय देखेंगे. Chapter 5 verses 25. मरकुस उसका 5वां अध्याय उसका 25वां वचन हम पढ़ेंगे. When we read this scripture, we can see that a woman, she had a
hemorrhage over 12 years. अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग She था। had a bleeding disorder. उसको लहू बहने का रोग था। She was suffering with that sickness for many years, 12 years. वो उस समस्या से 12 वर्ष से गुजर रही थी। She went to many physicians. वो बहुत सारे दवाखाने में She गई tried every medicine. और उसने सारी दवाओं का उपयोग किया। She sold her house, she sold her properties, and she was keep on spending for her health. उसने अपना घर बेच दिया, उसने अपना सारी जमीन जायदाद बेच दी और सारा पैसा उसने हाकिमों में दे दिया ताकि वो चंगाई ले सके। But one day she heard that Jesus is coming to her town. परंतु एक दिन उसने सुना कि यीशु मसीह उसके She नगर heard में आ रहे many good हैं। things about Jesus. उसने यीशु मसीह के बारे में बहुत सी अच्छी बातें सुनी See, थी। as a hemorrhage person, she is not allowed to appear in front of the crowd. वो उसको लहू बहने का रोग था तो फिर उसको अनुमति नहीं थी कि वो भीड़ में आ सके। But she has taken a decision. See, I am going to follow Jesus secretly. I am going to touch his cloth, his hem of his garment. Then I will receive healing. और परंतु उसने एक निर्णय लिया कि मैं चुपके से भीड़ में से निकल जाऊंगी और यीशु मसीह के केवल वस्त्र की छोर को छूंगी। She was waiting for her turn. One day she heard that Jesus is coming to her town. वो अपनी बारी के लिए रुकी थी और एक दिन उसने सुना कि यीशु मसीह उसके नगर में आ रहे हैं। She rose from that place. Then she went and through the crowd and squeezed in between that. She touched the hem of Jesus' garment. और उसने फिर वो अपने जगह से उठी और भीड़ में से चुपके से वो बाहर निकली और यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को उसने छुआ। As soon as she touched his garment, she received her healing. जिस क्षण उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ उसी समय उसने अपनी चंगाई को लिया। Hallelujah. हालेलुया। See how she put her hand by faith and she grabbed her healing. उसने अपने हाथ को विश्वास से आगे बढ़ाया और अपनी चंगाई को ग्रहण किया। But Jesus knew that the power went through from him. परंतु यीशु मसीह को ये समझा कि उसमें से कुछ सामर्थ्य निकला। Immediately Jesus questioned, "Hey, who touched me?" और तुरंत ही यीशु मसीह ने पूछा कि किसने मुझे छुआ। Then the disciple says, "Jesus, how he can ask this kind of question? Look at that. The hundreds of people were thronging at you. Then why you're asking who touched me?" तो चेलों ने उससे कहा, यीशु मसीह आप ऐसे प्रश्न को क्यों पूछ रहे हो? अपने चारों ओर देखिए कितनी भीड़ है, लोगों ने आपको छुआ होगा। But Jesus said, "No, someone touched me." Then this lady came forward and she said, "Lord Jesus, I touched you. I received my healing." She said the फिर भी story. यीशु मसीह ने पूछा कि किसने मुझे छुआ, तब ये स्त्री उठकर सामने आई और उसने कहा, यीशु मसीह मैंने आपके वस्त्र को छुआ और उसी समय मैं चंगी हो गई। Hallelujah. हालेलुया। That's the way the faith will work. यही है विश्वास, इसी प्रकार कार्य करता है। Even you cannot see, you have to see with your inner eyes. जो चीज आप अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, आपको अपनी आत्मिक आंखों से उसे देखना है। Even you don't have a house, what do you have to say? My God will give me a house. अगर आपके पास घर नहीं तो आपको इस प्रकार कहना है कि मेरा परमेश्वर मुझे घर देगा। Even you don't have a job, you have to say that my God will give me a job. अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आपको इस प्रकार कहना है कि मेरा परमेश्वर मुझे काम देगा। What do you have to do? You have to stretch your hands. आपको क्या करना है? अपने हाथ को आगे बढ़ाना You है। have to stretch your faith hands. आपको आपके विश्वासी हाथ को आगे बढ़ाना है। Don't look at your neighbor and other people, but what you have to do, you have to take the decision. आप अपने आजू बाजू अपने पड़ोसियों को मत देखिए, आपको निर्णय लेना है। Then you will see the hand of the Lord moving for you. और तभी आप परमेश्वर के हाथ को देखोगे आपके लिए कार्य करते हुए। Hallelujah. हालेलुया। Quickly, I'm going to John chapter 5. यूहन्ना उसका 5वां अध्याय। Here a man, he was a paralytic man. He was laying over 38 years next to a pool.
इस वचन में हम देखते हैं यूहन्ना उसका 5वां अध्याय में कि एक व्यक्ति जो बहुत सालों से 38 वर्ष से अपाहिज था मंदिर के चौखट पे था. Now there is in, I'll read it for you. After this, there was a feast of the Jews, and Jews went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethsaida, having 5 porches. In this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. You can make it short. हम लोग वचन को पढ़ेंगे. यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 1, 2 और 3. इन बातों के पीछे यहूदा का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया. यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसेरे हैं. इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे. Every year, an angel of God will come and stir the water. हर एक वर्ष परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उस पानी जो उस कुंड को हिलाता था. Whoever step into that water first time, they will receive the healing. और जो कोई उस कुंड के हिलते ही सबसे पहले उस कुंड में प्रवेश करता था वो अपनी चंगाई को पाता था. But this man, he couldn't move. He was waiting 38 years. परंतु ये व्यक्ति जो हिल नहीं पाता था क्योंकि वो अपाहिज था, वो 38 वर्ष तक इंतजार करता रहा. One day Jesus was walking that way. पर एक दिन यीशु मसीह उस जगह से गुजर रहे Jesus थे. knew that this man was laying there a long years. यीशु मसीह ये जानते थे कि ये व्यक्ति यहाँ पर 38 वर्ष से इंतजार कर रहा है. Then Jesus came and asked him, "A man, what do you want to be made well?" तो यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि हे व्यक्ति, तुझे क्या चाहिए? But this man said, turn your attention. This man said, "Sir, I do not have a man to put me in the water." तो उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि स्वामी, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है कि कुंड के हिलते ही मुझे वहां तक लेके जाए. Again I am repeating, "Sir, I do not have a man to help me to put me into the water." मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह से उसने कहा कि मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है कि वो मुझे उठाकर कुंड के हिलते ही उसमें डाले. Here Jesus was asking a question, "Hey man, do you want to be made well?" तो वहां पर यीशु मसीह से पूछ रहे कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो? But his answer was different. He never said, "Lord Jesus, heal me. I want to receive my healing." But he said, "See, I never had a man to help me to put into the water." परंतु उसका उत्तर अलग ही था. उसने ऐसा नहीं कहा कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर दीजिए, मुझे मेरी चंगाई चाहिए. उसने ऐसा कहा कि मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे कुंड तक लेके जाए. Hallelujah. हालेलुया. That means divine helpers. उसका अर्थ ये है कि आत्मिक सहायक. Do you have a man to help you? क्या आपके पास कोई व्यक्ति है जो आपकी सहायता कर सके? Do you have a man to stand with you? क्या आपके पास कोई व्यक्ति है जो आपके साथ खड़ा रह सके? Many people will stand with you and they will stab you at the back and leave. But if you have any real man to stay with you, आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े होंगे परंतु वो आपके पीठ पे एक चूरा घोंपने की नाई घोंप कर आपको छोड़ के चले जाएंगे. परंतु हमेशा के साथ आपके साथ रहने के लिए कोई व्यक्ति आपके पास है. see, God always use people. मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमेशा इंसानों का उपयोग करता है. Look at your neighbor and say, "God will use the people." अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहे कि परमेश्वर व्यक्ति का उपयोग करेगा. Give them a shake and say, "God will use the people." उनके हाथ को पकड़ के हिलाकर कहे कि परमेश्वर लोगों का उपयोग करेगा. See, why you are waiting longer and longer, many days and years, I'll tell you, you don't have a person to help you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप क्यों दिन महीने हफ्ते तक इंतजार करते रहते हो, क्योंकि आपके पास कोई व्यक्ति नहीं जो आपकी सहायता कर सके. It's not a God's fault. ये परमेश्वर की गलती नहीं है. You have to find that individual to help you. आपको उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जो आपकी सहायता कर सके. How many years? 38 years. Look at the neighbor and say, 38 years. कितने साल? 38 वर्ष. अपने पड़ोसी को देख के कहे 38 वर्ष. See, I believe that this man, he couldn't get married, he couldn't work. 38 years he was
laying next to a pool. मैं ऐसा How विश्वास sad it was. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि 38 वर्ष तक वो वही पड़ा था। उसकी शादी भी नहीं हुई होगी, उसके पास कोई काम भी नहीं होगा। कितनी दुख की बात है ये। How many years you wait and wait and wait and wait? कितने सालों तक आपने सिर्फ इंतजार और इंतजार ही किया है। I break every spirit of delay from your life in the mighty name of Jesus. मैं उस सारी देरी लाने वाली आत्मा को आपके जीवन से इसी समय तोड़ता हूँ। I break every power of the spirit of delay in the mighty name of Jesus. वो सारी देरी करने वाली आत्मा को मैं आपके जीवन से इसी समय तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। Every delays will be removed right now. हर एक वो देरी लाने वाली आत्मा इसी समय निकले। Lift your hands and receive it. अपने हाथों को उठाकर इसे I ग्रहण break करें। every power of the delay, every spirit of the delay from these people in the mighty name of Jesus. वो देरी के सारे सामर्थ को, वो देरी के सारी आत्मा को मैं इसी समय यीशु के नाम में निकालता हूँ। Rathadar rethele sianthe ग्रहण करें इस चीज को। rathe rekhele sianthe. God will use people परमेश्वर लोगों का उपयोग करेगा because God loves the relationship with people. क्योंकि परमेश्वर को बहुत ही पसंद है लोगों के साथ रिश्ता बनाने He में। wants to see his children always connected with together. परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहे। Our heavenly Father is looking every time an individual, my son or daughter is helping someone else. वो हमारा स्वर्गीय पिता हर एक क्षण देखता है कि मेरा पुत्र मेरी पुत्री किसी की सहायता कर रही But है। you cannot give money or you cannot give them a car or anything. But you can do something. Don't worry, my Jesus will help you. You can tell them. आप उसे पैसे नहीं दे सकते, आप उसे गाड़ी या घर नहीं दे सकते, लेकिन आप उसे ये जरूर कह सकते हो कि चिंता मत कर, मेरा यीशु तेरी सहायता करेगा। Look at your neighbor and say, do you have an individual to help you? अपने पड़ोसी को देखकर कहे कि आपके पास क्या कोई व्यक्ति जो आपकी सहायता करे। Turn to the other neighbor and say, do you have an individual to stand with you? अपने दूसरे पड़ोसी को देख करके क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ खड़ा रह सके। See, the love is the main fact. मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रेम ये एक बहुत बड़ा प्रति है। Without love, you cannot keep any good relationship. बिना प्रेम के आप कोई भी अच्छा रिश्ता बरकरार नहीं रख सकते। Bible says that the perfect love casts out every fear. परमेश्वर का वचन कहता है एक सिद्ध प्रेम सारे भय को निकालता है। Hallelujah. हालेलुया। The faith is the main thing to achieve impossible things in your life. विश्वास ये एक बहुत ही मुख्य चीज है अपने जीवन में असंभव बातों को ग्रहण करने के लिए। How we can receive faith? हम विश्वास को कैसे पा सकते हैं? Bible says that वचन कहता है faith comes by hearing and hearing and hearing by the word of the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। If you watch TV news 4 hours, you will not receive any kind of faith. Your faith will lose. अगर आप टीवी पर कोई न्यूज़ चैनल लगा के उसे देखते रहे तो फिर आप विश्वास को नहीं पा सकते। That's all fake news. वो सारी झूठी बातें हैं। But if you hear the word of God again and again and again, something will happen inside. लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को बार बार सुनोगे तो अंदर कुछ तो होगा। Hallelujah. हालेलुया। No one can stop you then.
फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता. Even the sickness come and touch you, then say no, 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 because Bible says that through his stripe, by his stripes I am healed. अगर बीमारी भी आपको छूने आएगी तो फिर आपका अंदर आत्मा कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ. Because the word will work. क्योंकि आपके अंदर वचन कार्य करेगा. The word of God will work. परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य Bible करेगा. says that the heavens and the earth will pass away, but my words will never pass away. परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा. Hallelujah. हालेलुया. Do you know the word of the Lord? क्या परमेश्वर के वचन आपको पता है? How often you hear the word of the Lord? आप कितना परमेश्वर के वचन को सुनते हो? You always want to talk to the people 1 hour, 2 hours through the phone. You always want to see some people are doing something in the TV. But how much time you spend to listen the word of the Lord? आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लोगों के साथ फोन पर बातें करते रहते हो, टीवी पे शोज देखते रहते हो, लेकिन आप परमेश्वर को वचन को सुनने और मनन करने में कितना समय देते हो? Spend time. समय बिताए. Attend every fasting prayer. Pastor was talking about fasting prayer. उस उपवास प्रार्थना की सभा में रहे. Actually, he doesn't want to take any fasting. He's already old. You know, he doesn't want to take any fasting. You have to do fasting. पासवान को उपवास प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है. आपको उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत है. Even in this age, he want to organize a fasting prayer. It's not for him, it's for you. इस उम्र में भी अगर पासवान आपके लिए उपवास प्रार्थना का प्रयोजन करते हैं तो वो उनके लिए नहीं करते, आप लोगों के लिए कर रहे हैं. See, you don't miss any single services. आपको कोई यहाँ पर आराधना की सभा की जरूरत You है. have to come and hear the word of the Lord again and again and again. आपको यहाँ पर आकर परमेश्वर के वचन को बार बार सुनना चाहिए. Then I'll tell you, no one can stop you at all. और फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको बढ़ोतरी कोई नहीं रोक सकता. No limitations can touch you. कोई सीमाएं आपको छू नहीं सकती. No demons can touch you. कोई दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकता. No power of witchcraft or black magic or whatever it is cannot touch you. कोई जादू टोना की शक्ति आपको छू नहीं सकती. Because he who is in you, he is greater than he who is in the world. क्योंकि आप में जो है वो उससे कहीं अधिक है जो इस संसार में है. Hallelujah. Hallelujah. Jesus defeated everything at the cross. पर प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीजों को हरा दिया उस क्रूस He पर. already gave the power to trample over scorpions and all the power of the snakes, and for the entire power of the enemy, nothing is going to touch you. पर मैं प्रभु यीशु मसीह ने आपको सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और उन सारे अंधकार वाली शक्तियों पर अधिकार दे दिया है. Then why you want to fear? तो फिर आपको डरना क्यों है? Fear not. डरिए मत. Look at your neighbor and say, fear not. अपने पड़ोसी को देखकर कहे डरो मत. Shake your hand and say, fear not. उसके हाथ को मिलाकर कहे डरो मत. Bible says that fear the Lord with reverence. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय माने. Only you have to fear the Lord. आपको सिर्फ परमेश्वर का ही भय मानना है. Not the little things, whatever trembling on this earth. वो सारी चीजों का नहीं जो इस पृथ्वी पर रेंग रही है. Who said you are sick? कौन कहता है कि आप बीमार हो? Who said you can't do it? कौन कहता है कि आप नहीं कर सकते? Who said you are broke? कौन कहता है कि आप टूटे हुए हो? Who said you are a failure? कौन कहता है कि आप हारे हुए हो? Bible says that परमेश्वर का वचन कहता है you are more than conqueror. परमेश्वर का वचन कहता है आप जयवंत से भी बढ़कर हो. Hallelujah. हालेलुया. Look at your neighbor and say, I can do all things through Christ who strengthens me. परमेश्वर के अपने पड़ोसी को देखकर कहे कि मैं सारी चीजें मसीह में कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है. Rathe rethele. I know you all are catching fire. आप सभी अग्नि को पकड़ रहे हो. Your faith is rising. आपका विश्वास बढ़ रहा है. Your faith is rising. आपका विश्वास बढ़ रहा है. The reason you are hearing the word of the Lord. इसका कारण है कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो. The faith is the main thing to receive the miracle. विश्वास ये एक मुख्य कारण है चमत्कार को ग्रहण करने का. Which doctor say you cannot conceive, you cannot have a child? कौन सा डॉक्टर कहता है कि आप कभी माँ या बाप नहीं बन सकते, आप कभी बच्चा नहीं रख सकते?
See, God can change every written decrees. कहे कि परमेश्वर सारे लिखी हुई रिपोर्ट्स को बदल सकता है, अपने मुंह से कहे Hallelujah. हालेलुया। Look at your neighbor and say, God can change every written decrees against you. अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहे कि परमेश्वर आपके विरोध में लिखी हुई हर एक चीज को बदल सकता है। Bible says that you are blessed people. परमेश्वर का वचन कहता है कि आप आशीषित लोग हो। We are called to be blessed. आप बुलाए गए हो आशीष देने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। We are called to be blessed. हम लोग बुलाए गए हैं आशीषित होने के लिए। Jesus asked him, do you want to be made well? यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? But this man said, Lord, I never had a man to help me. परंतु इस व्यक्ति ने उनसे कहा कि प्रभु मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे कुंड तक लेके जाए। You don't forget the people whoever helped you in the past. आपको उन व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आपके अतीत में आपकी सहायता की You थी। don't forget the people who stood with you when you were alone. आपको उन व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपके साथ खड़े थे जब आप अकेले थे। You don't forget the people whoever held your hand, they stayed with you when you were in your valleys. आपको उन व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपकी चिंताओं में आपके हाथ को पकड़कर आपके साथ खड़े थे। Hallelujah. हालेलुया। God always watching. परमेश्वर हमेशा देखता है। His eyes are naked. उसकी आंखें हमेशा खुली हुई है। He can see every of his creation. वो अपनी सारी रचनाओं को बराबर देख Even सकता है। he knows your thoughts. वो आपके विचारों को भी जानता है। Even your hairs are numbered. आपके सर के बाल भी गिने हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। That is God. वो हमारा परमेश्वर है। How many of you believe in that God? आप में से कितने लोग उस परमेश्वर पर Our भरोसा God कर is सकते हैं? the name. Our God is a God of wonders, signs and wonders. हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करने वाला Our परमेश्वर God है। is a God of signs and wonders. हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर He है। always prove His word. वो हमेशा अपने वचन को पूरा करता है। Whatever He say, He will prove it. जो कुछ भी वो कहता है वो उसे पूरा करके रहता है। Hallelujah. हालेलुया। He is not a lying God. वो झूठा परमेश्वर नहीं। Our God is not a liar. हमारा परमेश्वर झूठा नहीं। The devil is the liar. शैतान दुष्ट झूठा है। Look at your neighbor and say, the devil is a liar. अपने पड़ोसी को देखकर कहे दुष्ट झूठा है। Don't believe in his lies. उसके झूठ पर विश्वास न करें। Who said you are alone? कौन कहता है कि आप अकेले हो? Who said you are alone? कौन कहता है कि आप अकेले हो? Who said you have depression? कौन कहता है कि आपके पास तनाव है? Don't believe the lies of the devil. शत्रु के दुष्ट के झूठ पर विश्वास न रखें। If God is with you, who can stand against you? जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन होगा? Look at your neighbor and say, if God is with you, who can stand against you? अपने पड़ोसी को देख के कहे कि अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा विरोधी कौन होगा? No weapon fashioned against you will prosper. कोई भी शत्रु का तीर तुम्हारे विरोध में कार्य नहीं करने And पाएगा। every tongue rise against you will be judged, and you shall condemn. और जो भी जीभ तुम्हारे विरोध में बोलती है वो नाश की जाएगी। See, you need faith. मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको विश्वास की जरूरत है। If you are ready to exercise your faith, I'll tell you, within 6 months, you will see miracles after miracles after miracles in your life. अगर आप आज तैयार हो अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ 6 महीने के अंदर ही आप चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार अपने जीवन में देखोगे। You don't need to wait
38 years. आपको 38 वर्ष इंतजार करने की You don't जरूरत need to नहीं। wait 25 years. आपको 25 वर्ष भी इंतजार करने की जरूरत See, नहीं। you don't need to wait longer years. आपको सालों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। Stretch your hands. अपने हाथों को आगे बढ़ाए। Everyone stretch your hands like this. अपने हाथों को इस प्रकार आगे It's बढ़ाए। a faith declaration. ये विश्वास की घोषणा है। Look at your hands. अपने हाथों को देखें, Hold like this. ऐसे रखें अपने हाथों को और अपने हाथों की ओर देखें। And look at your hand. अपने हाथों की ओर देखें Then say, my hands are blessed hands. और कहे कि मेरे हाथ आशीषित हाथ है। Say with a smiley face, my hands are blessed. मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहे कि मेरे हाथ आशीषित है। Once again. फिर एक बार, मेरे हाथ आशीषित है। When Jesus shed the blood from his palms, the blood, you know why? He made our hands righteous hands. जब यीशु मसीह ने अपने हाथ की हथेलियों से लहू बहाया, तब उसने हमारे हाथों को धर्मी हाथ बनाया। Hallelujah. हालेलुया। Once our hands were very bad, wicked hands. एक समय ऐसा था कि हमारे ये हाथ बहुत ही दुष्ट हाथ थे। But when Jesus went to the cross, when the Roman soldiers pierced his hands, the blood came out from his hands. That one brought righteousness in our hands. परंतु जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और लोगों ने कीलों से उनके हाथों को भेदा और जो लहू उस हाथ से निकला, उस लहू के द्वारा हमारे दुष्ट हाथ आशीषित हाथ हुए। How many of you can say, my hands are righteous hands? आप में से कितने लोग ये कह सकते हो कि मेरे हाथ धर्मी हाथ है? मेरे हाथ धर्मी हाथ है। Once again. फिर एक बार, मेरे हाथ धर्मी हाथ है। Whatever I touch will be blessed. जो कुछ भी मैं छूऊंगा वो आशीषित होगा। My hands are blessed. मेरे हाथ आशीषित है। Whatever I touch will be blessed. मैं जो कुछ भी छूऊंगा वो आशीषित होगा। My family will be blessed. मेरा परिवार आशीषित होगा। My children will be blessed. मेरे बच्चे आशीषित होंगे। My job will be blessed. मेरा काम आशीषित होगा। My house will be blessed. मेरा घर आशीषित होगा। My church will be blessed. मेरी कलीसिया आशीषित होगी। My wife will be blessed. My husband will be blessed. My children will be blessed. मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे आशीषित होंगे। Declare it over your life. घोषणा करें, Open your घोषणा mouth and करें। declare अपने it. जीवन में इन बातों Whatever की you घोषणा करें। say, it will happen to you. जो कुछ भी आप कहोगे आपके जीवन में वैसा होगा। Our घोषणा God is करें। not a liar. हमारा परमेश्वर झूठा नहीं। Whatever He say, He will do it. जो कुछ भी वो कहे, तुम कहोगे He वो has उसे only करेगा। good plans about you. वो उसके पास तुम्हारे लिए भली He योजना doesn't है। want to harm you. He want to lift you. वो आपको दंड देना नहीं चाहता, नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। He वो want to आपको lift उठाना you. चाहता है। वो आपको उठाना चाहता है। I'm going to take 5 more minutes. After that, I'm going to pray for you. मैं और 5 मिनट लूंगा, उसके बाद मैं आप सभी के लिए I want to प्रार्थना turn your करूंगा। attention to John chapter 11. यूहन्ना उसका 11 अध्याय। Here Lazarus is dead. यहाँ पर लाजरस मरा हुआ है। Jesus loved Lazarus very much. यीशु मसीह लाजरस से बहुत ज्यादा प्रेम करते After थे 4 days of death, Jesus visited his town. और लाजरस के मृत्यु के 4 दिन बाद यीशु मसीह इस नगर में उससे मिलने आए। Then Mary and Martha, they came and told to Jesus, Jesus, you came late. If you would have been here, my brother would not have died. मरियम और मार्था रोते हुए यीशु मसीह के पास आकर उनसे कहा कि यीशु मसीह, अगर आप उस समय यहाँ पर होते तो मेरा भाई लाजरस कभी न मरता। But Bible says that Jesus went to the tomb. परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह उस टूम के अंदर गए। See, this portion is really prophetic. ये भाग बहुत ही एक बहुत ही भविष्य भाग है। It's really prophetic. You just turn your attention. Listen. अपने सारे ध्यान को यहाँ केंद्रित करें और इसे ध्यान से सुने। Jesus went to the tomb. यीशु मसीह उस जगह में गए। Then he cried out with a loud voice. और उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया, Lazarus, come forth.
लाजरस बाहर आ। Lazarus was dead. He was in the tomb for 4 days. लाजरस मर चुका था और वो जगह पर 4 दिन से था। But these people, they began to mock at Jesus. Why this prophet? What this doing? He's already dead 4 days. और जब यीशु मसीह उसे पुकार रहे थे तब आजू बाजू के लोग इस बात पर मजाक उड़ा रहे थे कि लाजरस को मर के तो 4 दिन हो चुके हैं, ये But उसे क्यों Jesus पुकारता knew है? that he's going to resurrect Lazarus. परंतु प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो लाजरस को पुनः जीवित कर सकते हैं। Jesus went and stood in front of the grave. पर प्रभु यीशु मसीह जाकर उस जगह के बाहर खड़े हुए। Any deadness is in your life? वो कुछ भी मरी हुई चीज आपके जीवन में, Your womb is dead? क्या आपका गर्भ मरा हुआ है? Your finances are dead? क्या आपका जो आर्थिक व्यवस्था है वो मरा हुआ है? Are you facing any kind of death? I'll tell you, the resurrection power will come for you. अगर आप अपने जीवन में कोई भी मरी हुई परिस्थिति का सामना कर रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पुनर्स्थापना, पुनर्जीवन आपके जीवन में आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus came to the tomb and he cried out, Lazarus, come forth. और यीशु मसीह जगह पर गए और उन्होंने आवाज दी कि लाजरस बाहर आ। But before he was doing that, he found out that a big stone was kept at the mouth of the tomb. लेकिन यीशु मसीह जब वहां पर पहुंच ही रहे थे तब उन्हें ये पता चला कि जगह के बाहर उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ See, है। Jesus knew that Lazarus by himself, he could not push that stone out. और यीशु मसीह ये जानते थे कि लाजरस खुद से तो उस पत्थर को वहां से नहीं हटा सकता था। That stone was a hindrance for his miracle. और वो जो पत्थर वहां पर था वो एक रुकावट था उस चमत्कार के लिए। Then Jesus told to the disciples, तब यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, remove this stone. इस पत्थर को यहाँ से हटाओ। Hallelujah. हालेलुया। See, the miracle is going to begin. और फिर वो चमत्कार वहां पर शुरू हुआ। First of all, Jesus came in front of the tomb. और सबसे पहली बात यह है कि यीशु मसीह जगह पर बाहर Then खड़े he हुए found out that there is a big stone और- was kept in front of the tomb. और फिर उन्हें पता चला कि एक बड़ा पत्थर उस जगह पर That रखा was हुआ a है stumbling block for the miracle. और वो एक रुकावट थी उस चमत्कार को पूरा होने के Then लिए। Jesus said, remove the stone. तब यीशु मसीह ने कहा कि उस पत्थर को वहां से हटाइए। The people came and removed the stone. लोग वहां पर आए और उन्होंने उस पत्थर को वहां से After हटाया। that, Jesus cried out, Lazarus, come forth. तब यीशु मसीह ने चिल्लाया कि लाजरस बाहर आ। When Jesus cried out, the dead Lazarus came out. जब यीशु मसीह ने पुकारा लाजरस बाहर आ, तब मरा हुआ लाजरस उठकर बाहर आया। But Bible says that he came out with a grave clothes. तब परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बाहर आया कपड़े में लिपटे हुए होकर। He came with the grave clothes. According to the Jewish tradition, what they do when they bury a person, they will wrap the body with a cloth, long cloth. यहूदी परंपरा के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब वो मुर्दे को सफेद कपड़े से पूरा ढक देते हैं। Not only that, they will cover the body, dead body, with a handkerchief. The head will cover with the handkerchief. और यही नहीं कि वो एक रुमाल से उस मुर्दे के सिर को भी ढक देते हैं। How did this Lazarus came forth with these grave clothes? तो कैसे वो मरा हुआ लाजरस उस कपड़े में लिपटे हुए होकर बाहर आ सकता है? Hallelujah. हालेलुया। See, Jesus is the one created everything. यीशु मसीह ही वही है जिसने सारी चीजों की रचना की। Without him, nothing were made. उसके बगैर कुछ भी रचा नहीं गया। When Jesus said, Lazarus, come forth, the power of the resurrection power went to this grave cloth. The grave cloth brought Lazarus out. और जब यीशु मसीह ने कहा कि लाजरस बाहर आ, तो वो बोलने का सामर्थ उस लिपटे हुए लाजरस को कपड़े समेत बाहर ले आया। Hallelujah. हालेलुया। See, whenever the voice come from the heaven, from Jesus, I'll tell you, every grave cloth, whatever you burying you, it will obey. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग से जब कभी यीशु मसीह की आवाज आपके जीवन पर आएगी तो जो कुछ भी कपड़ा आपको बंधा हुआ है, जो कुछ भी भारी भरकम बोझ आप पर है, वो सब
टूट कर आप बाहर निकलोगे। How many of you are covered with the grave clothes? I know some people are here. You are buried with the grave clothes. Tonight, the resurrection power will come upon you. He will set you free from every problems, every addictions, and every limitations in the mighty name of Jesus. मैं जानता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो वही का वस्त्र से पूरे बंधे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज रात को वो पुनः जीवन, वो जो समस्या से आप गुजर रहे हो, वो सारी समस्या को छोड़कर यीशु के नाम में पुनः जीवन आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Lazarus came out. लाजरस बाहर आया, But Jesus found out that he couldn't move. जैसे ही लाजरस बाहर आया, यीशु मसीह ने देखकर ऐसा देखा कि लाजरस हिल नहीं पा रहा He है, couldn't walk वो चल नहीं पा रहा है, because there was a grave clothes was covered all over his body. क्योंकि वो सफेद कपड़ा उसके पूरे शरीर को लिपटे हुए था। You may want to do something, but somehow enemy put the grave clothes in your mind. That thing is going to leave right now in the mighty name of Jesus. उसी प्रकार से आप अपने जीवन में कुछ करना तो चाहते हो, लेकिन वही सफेद कपड़ा आपको लिपटे हुए हैं, लेकिन इस रात को यीशु के नाम में वो आपको छोड़ के जाने वाला है। The fear tried to cripple you. You want to do something, but the fear is standing with you. That fear is going to leave right now in the mighty name of Jesus. आप कुछ तो करना चाहते हो, लेकिन वो डर आपको रोकता है। वो डर की वजह से आप कुछ कर नहीं पाते, लेकिन आज रात को वो डर आपको छोड़ के जाने वाला है यीशु के नाम में। The fear of the death, the fear of the failure is going to leave right now in Jesus' name. वो मरने का डर, वो हारने का डर आज आपको छोड़ के जाने वाला है यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Every grave clothes are going to uncover today. वो सहारे लिपटे हुए कपड़े आज निकलने वाले यीशु के नाम में। Jesus found that Lazarus couldn't walk because of his grave clothes. यीशु मसीह ने देखा कि लाजरस हिल नहीं पा रहा है क्योंकि वो कपड़े से लिपटा हुआ है। Then Jesus said तब to the people, loose him and let him go. तब यीशु मसीह ने वहां पर मौजूद लोगों से कहा कि इसकी पट्टियों को खोल दो और इसे जाने दो। Hallelujah. हालेलुया। Jesus again used the people to bless him. यीशु मसीह ने फिर एक बार लोगों का उपयोग किया उसको आशीषित करने के लिए। That's why God kept apostles, prophets, and pastors and preachers to help you to equip the body of Christ. इसीलिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों को, पासवानों को आपके लिए रखा है ताकि आपको मसीह में सहायता कर सके। Hallelujah. हालेलुया। Jesus was in the tomb यीशु मसीह उस कब्र में थे 3 days. 3 दिन तक, But the third day, परंतु तीसरे दिन something happened. Miracle happened. कुछ तो चमत्कार हुआ। Bible says that परमेश्वर का वचन कहता है, the grave clothes couldn't hold him in the tomb. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लिपटे हुए कपड़े जो उसके शरीर पर थे वो उसे कब्र में ज्यादा दिन तक रख On नहीं the पाए। third day, he uncovered the grave clothes by himself and he walked out freely from the grave. तीसरे दिन यीशु मसीह ने खुद से उन सारे लिपटे हुए वस्त्र को उतार कर खुद बाहर निकल गए। Hallelujah. हालेलुया। He is the creator. वो रचने वाला परमेश्वर है। He doesn't need anyone's help at all. वो उसको किसी और की सहायता की जरूरत He नहीं। uncovered the grave clothes by himself. He folded the handkerchief and he kept in a nice place and he walked out from the tomb. तीसरे दिन उसने अपने शरीर पर सारे लिपटे हुए कपड़ों को उतार कर उसके शरीर के रुमाल, उसके सर के रुमाल को उतार कर अच्छे से एक स्थान पर रखा और खुद से ही बाहर चले गए। See, no tomb can stop you. देखो, कोई कब्र आपको रोक नहीं सकती। No hell can stop you. कोई नरक आपको रोक नहीं सकता। Every grave clothes are going to be out tonight in the mighty name of Jesus. वो हर एक लिपटे हुए कपड़े निकलने वाले यीशु के नाम में आज। Ratha rasi khele tere in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Every fear हर एक डर, about the people, लोगों का डर,
fear about the demonic activities. वो उन सारे दुष्ट कार्यों का डर. You know where it is coming from? It's from the hell. आप जानते हो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? ये सारी चीजें नर्क से आ रही You हैं. had to shake it off. हमें उन सारी चीजों को हिलाना पड़ेगा. Hallelujah. हालेलुया. First of all, what we need faith. सबसे पहले चीज जो हमें चाहिए वो है विश्वास. You have to believe that आपको इस बात पर विश्वास our रखना God होगा. is able to do exceedingly abundantly above what we are thinking and or ask, according to the power of the Holy Spirit is working in us. हमें ये बात पर विश्वास रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर काबिल है हमारे सोच से भी ज्यादा भरपूरी से हमें देने के लिए जो पवित्र आत्मा हम में कार्य करता है. He is able to do exceedingly and abundantly. वो काबिल है भरपूरी से चीजों को आपके जीवन में करने के Nothing लिए. can stop you at all. कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती. Shall we stand on our feet? क्या सभी हम लोग खड़े हो सकते हैं? You heard about the people who brought the paralytic man in front आपने- of Jesus. आपने उन लोगों के बारे में सुना जिन्होंने उस अपाहिज व्यक्ति को यीशु मसीह के पास ले आए. Jesus healed him because of their faith. यीशु मसीह ने उस अपाहिज व्यक्ति को चंगा किया उन 4 लोगों के विश्वास से. Are you believing for a miracle tonight? क्या आप एक चमत्कार होने का विश्वास रखते हो आज की रात? You don't wait for another night. और दूसरे किसी रात के लिए इंतजार मत करें. Tonight is your night. आज की रात आपकी रात है. Tonight is the night of miracle for you. आज की रात आपके लिए चमत्कार की रात है. Tonight is a night of miracle for you. आज की रात आपके लिए एक चमत्कार की रात है. Whatever man cannot do it, God can do it for you. जो कुछ भी मनुष्य आपके लिए नहीं कर सकता परमेश्वर आपके लिए करेगा. Whatever human cannot do it, my God can do it for you. जो कोई मनुष्य आपके लिए कोई चीज नहीं कर सकता परमेश्वर आपके लिए करेगा. Hallelujah. हालेलुया. He is El Shaddai. वो एल शडाई परमेश्वर He is है. Elohim. वो एलोहीम परमेश्वर है. He is Nissi. वो यहोवा नीसी है. He is Jireh. वो यहोवा ईरे है. Hallelujah. हालेलुया.